کہ تم جوان ہو یا بوڑھے ہو یا بچے ہو کچھ بھی ہو، جب تک تمہاری سانس چل رہی ہے اپنی زندگی کا حساب کرو۔ اللہ نے جو فرض کیا ہے، اللہ نے جو واجب کیا ہے اس کو ادا کرتے رہو، یہ دنیا بھی کامیاب ہوگی اور قبر بھی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اقترب للناس حسابهم، کہ انسان کا حساب اس کے قریب ہو چکا ہے۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُوردُونَ، لیکن انسان اپنے حساب اور کتاب سے غفلت میں پڑا ہوا۔ ہم کس قدر اپنے حساب اور کتاب سے غفلت میں ہیں، اور ہم کس قدر اپنے جائزہ اور اپنے محاسبہ سے غفلت میں ہیں، اس کا اندازہ ہم کو لگانے کی ضرورت ہے۔ آپ کو حساب جو اللہ نے کہا کہ تمہارا حساب قریب ہے لیکن تم غفلت میں ہو، تو یہاں اس حساب سے یہ نہیں کہ آپ کے پاس کیا بھیگا زمین ہے اس کا حساب کرنا ہے، یا آپ کے پاس بینک میں کتنا پیسہ ہے اس کا حساب کرنا ہے، یا آپ کے اوپر کتنی ذمہ داریاں ہیں وہ آپ کو حساب کرنا ہے۔ وہ حساب تو آپ کرتے ہیں، لیکن اصل میں جو حساب کرنا چاہیے، اصل میں جو محاسبہ کرنا چاہیے، اصل میں جو جس چیز کا ایک انسان کو اپنی زندگی میں ایک جائزہ لینا چاہیے، وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے ایک انسان کے اوپر لاگو کیا۔ اللہ نے ہمارے اوپر کیا لاگو کیا ہے، اللہ نے ہمارے اوپر کیا فرض کیا ہے، اللہ نے ہمارے اوپر کیا واجب کیا ہے، ہم اس کا حساب کریں اور اس کے حساب سے ہم غفلت میں ہیں۔ آج کون جانتا تھا کہ جس کے نام پر ہم یہاں اکٹھا ہوئے ہیں اس کی عمر کا یہاں پر کتنے سارے بچے موجود ہیں، وہ ہماری عمر کا ہے، شاید کہ ہم سے چھوٹا بھی ہو، لیکن وہ ہم سے چلا گیا، لیکن ہم کو اپنی زندگی کا حساب پتہ نہیں ہے۔ وہ چلا گیا، اب وہ قبر میں موجود ہے۔ جو حساب دنیا میں کرنا چاہیے تھا ان کو قبر میں وہ حساب دینا پڑ رہا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ آج ہم جوان ہیں، بوڑھا ہوں گے تب نماز پڑھیں گے۔ کوئی سوچتا ہے کہ ابھی ہم چلتا پھرتا انسان ہیں، ابھی ہماری کمر سیدھی ہے، بعد میں جا کر کے نماز پڑھیں گے یا روزہ رکھیں گے یا سچ بولیں گے یا صحیح راستے پر چلیں گے۔ یہ غفلت میں آپ پڑے ہوئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُوردُونَ، انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ اس بچے کو کیا معلوم تھا کہ ہم چوپڑا جائیں گے اور گھر آئیں گے تو راستے میں حادثہ ہو جائے گا، ہمارے ساتھ یہ پریشانی ہو جائے گی، ہم کو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے، اپنے بچوں کو چھوڑ کر کے، اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے، اپنے عالی شان گھر اور بنگلہ کو چھوڑ کر کے ہم کو قبر میں جانا پڑے گا۔ ان کی موت ہم کو یہ دعوت دیتی ہے، ان کی موت ہم کو یہ پیغام دیتا ہے کہ تم جوان ہو یا بوڑھے ہو یا بچے ہو کچھ بھی ہو، جب تک تمہاری سانس چل رہی ہے اپنی زندگی کا حساب کرو۔ اللہ نے جو فرض کیا ہے، اللہ نے جو واجب کیا ہے اس کو ادا کرتے رہو، یہ دنیا بھی کامیاب ہوگی اور قبر بھی کامیاب ہوگی۔ میرے عزیزو دوستو، اس بچے کا جو جانا ہے ہمارے درمیان سے ہم کو یہی پیغام دیتا ہے۔ آج ہم حساب نہیں کریں گے کہ ہم نے کتنے فرائض کو ادا کیا ہے، کتنے نمازوں کو پڑھا ہے۔ آپ یہاں پر میں آپ کو ایک مسئلے کی بات بتاتا ہوں۔ جنت تو آپ بہت سنتے ہیں، جنت میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک بچہ 8-10 سال کا ہو جائے اس کو نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے، جب نماز نہ پڑھے تو اس کو پیٹا جائے۔ اس کے بعد اگر جب وہ 15 سال ہو جائے، 15 سال کی عمر میں
अल्लाह की जानिब से, शरीयत की तरफ से उस बच्चे के ऊपर नमाज और अल्लाह के जो फराइज है और जो वाजिबात है 15 साल की उम्र में फर्ज हो जाता है और वाजिब हो जाता है। चाहे वो कोई भी इंसान हो जाए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, जब 15 साल की उम्र में कदम रखेगा अल्लाह की तरफ से नमाज फर्ज हो गई। अगर मालदार है तो ज़कात फर्ज हो गई, अगर मालदार है तो कुर्बानी फर्ज हो गई, अगर मालदार है तो उसको अपनी तरफ से फितरा का पैसा अदा करना फर्ज हो गया, जुमा वगैरह सब उसके जिम्मे में आ गया। अब 15 साल की उम्र में यहाँ कितने लोग हैं जो 15 साल की उम्र से उसने नमाज पढ़ना शुरू किया हो, 15 साल की उम्र में उसने ज़कात देना शुरू किया हो, 15 साल की उम्र में उसने कुर्बानी करना शुरू किया हो। अल्लाह अकबर, हमको अपनी जिंदगी का हिसाब लगाने की जरूरत है, अपने किए कराए का हमको मुआसबा करने की जरूरत है। बुजुर्गों ने कहा है अगर तुम रास्ते में चलते हो और तुम्हारे पैरों तले अगर कांटा चुभ जाता है तो तुम पिछले अपने कदम को पलट करके देखो कि तुम्हारा कदम किधर गया था। अगर नाजायज गया था या गलत उठा था तो समझ लो कि रास्ते में चलते हुए अगर पैरों में कोई कांटा छुपा है तो उसी गलती की तुम्हें सजा दी गई है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, बुजुर्गों ने हमको यही कहा है, लेकिन आज हम लोग गफलत में पड़े हैं और हम लोग ऐश और मस्ती की जिंदगियों में बसर करते हैं, खूब खाते हैं, खूब एक से आलीशान 2 मंजिला 4 मंजिला बिल्डिंगें बनाते हैं, एक से एक टाइल्स और मार्बल लगाते हैं, मस्जिदों को आलीशान बना देते हैं। लेकिन मेरे अज़ीज़ों दोस्तों, हमारा घर तरक्की कर रहा है, हमारा गांव तरक्की कर रहा है, हमारी मस्जिद तरक्की कर रही है, हमारा मदरसा तरक्की कर रहा है, लेकिन उस वक्त कामयाबी मिलेगी जिस वक्त इन तरक्कियों के साथ हम अपने आप में तरक्की लाएंगे, हम अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, हम अपने आप को अल्लाह की शरीयत की तरफ आगे बढ़ाएंगे, नबी पाक की सुन्नत की तरफ आगे बढ़ाएंगे। आज हमारा बच्चा अपने सर का बाल काटता है तो शेख चिल्ली की तरह काटता है, बाप को जरा सा ख्याल नहीं होता। आज हमारा बच्चा शराब के अड्डों में जाता है तो हमको ख्याल नहीं होता। आज हमारा बच्चा अड्डागिरी करता है, मोबाइल बाजी करता है तो आज हमको इसका ख्याल नहीं होता। लेकिन क्यों नहीं होता? उसकी वजह यह है कि हम खुद बिगड़े हुए हैं, इसी वजह से हमारा बच्चा बिगड़ा हुआ सा। अल्लाह के नबी ने कहा कि हर बच्चा इस्लाम की फितरत में पैदा होता है, लेकिन फिर वो बच्चा हिंदू हो जाता है, फिर वो बच्चा क्रिश्चियन हो जाता है, फिर वो बच्चा बुद्ध और जैन मजहब का मानने वाला हो जाता है। लेकिन अल्लाह के नबी कहते हैं कि हिंदू के घर में पैदा होने वाला बच्चा और क्रिश्चियन और यहूदी के घर में बच्चा पैदा होने वाला वो भी मुसलमान होता है, लेकिन वो बच्चा जब अपनी आंखों को जिसके आगोश में खोलता है, जिस घर में खोलता है, जिस सोसाइटी में खोलता है, जिस समाज में वो बच्चा अपनी आंखों को खोलता है और अपनी जिंदगी को बसर करता है, वो बच्चा पैदा होने वाला वो इस्लाम और मुसलमान होकर के पैदा हुआ, लेकिन अपने माँ बाप को जैसा कल्चर पाया उस कल्चर में वो बच्चा ढलता हुआ नजर आया। जिस समाज में जो कल्चर पाया वो बच्चा उस कल्चर में ढलता हुआ चला गया। इसलिए हर बच्चा मुसलमान पैदा होता है, हिंदू के घर में बच्चा हिंदू बन जाता है और मुसलमान के घर में बच्चा मुसलमान बन जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको अपने आप को सुधारने की जरूरत है, अपना मुआसबा करने की जरूरत है, गांव समाज को सुधारने की जरूरत है, अपने कल्चर को सुधारने की जरूरत है, तब जाकर के हम आगे बढ़ेंगे। सिर्फ घर बना लेना, मस्जिदों को आलीशान कर लेना और मदरसों को आलीशान कर लेना, आपको सुन के हैरत होगी ये टाइल्स, ये मार्बल, ये मस्जिदों की बड़ी बड़ी क्या मीनारें लगाना, ये क्या है? ये सब के सब कयामत की निशानियां बताई गई है कि एक दौर ऐसा आएगा कि लोग अपनी मस्जिदों के जरिए से आपस में एक दूसरे में फख्र महसूस करेंगे कि देखो हमने
अपने गांव में आलीशान मस्जिद बना दिया है, देखो हमने अपने गांव में आलीशान मदरसा बना दिया है, हमने अपने गांव में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दिया है। ये 4 मंजिला बिल्डिंग हो या 2 मंजिला बिल्डिंग हो, ये सब के सब क़यामत की निशानियां बताई गई है। ये जब बिल्डिंगें बनने लगे, हर गरीब मालदार बनेगा, हर गरीब का घर वो कच्चा नहीं रहेगा, वो बिल्डिंग का बनता हुआ नजर आएगा। नबी ने कहा कि जब तुम ऐसा कंडीशन देखो तो अल्लाह की तरफ माइल हो जाना, नबी की तरफ माइल हो जाना, इसलिए कि अब क़यामत करीब है, अब तुम दुनिया से जाने वाले हो, अब तुम्हारे साथ दुनिया में अच्छा माहौल पैदा होने वाला नहीं है। तुम अपने आप को बचाओ, अपने फैमिली को बचाओ, ताकि तुम इस दुनिया के परेशानियों से भी बच जाओ और मरने के बाद कब्र के अजाब से भी बच जाओ। मेरे आसियो दोस्तों, मेरी बातों का खुलासा ये है कि अपने आप को सुधारिए, अपने आप को आप अच्छा बनाइए, शरीयत खुदा पर चलिए। मैंने आपको एक पॉइंट की बात बताया, आप पूरी बात को भूल जाए, लेकिन एक बात जो मैंने बताया आपको कि 15 साल की उम्र में नमाज फर्ज हो जाती है, आपको नमाज पढ़ना है। आप लोगों में से कितनों ने पढ़ा है और कितनों ने नहीं पढ़ा है? अपना मुहासबा, अपना हिसाब, जैसे बैंक के पैसे का हिसाब आप करते हैं, ऐसे ही अपनी इबादतों का आप हिसाब करें और अपने रियासतों का हिसाब करें। अल्लाह ने आप पर जो अहकाम नाजिल किए हैं, जो कुरान अता किया है, उस कुरान को भी पढ़िए, उस कुरान को भी आप समझने की कोशिश कीजिए। अपने बच्चों को मदरसा भेजिए, अपने आप को जुमा के दिन, कम से कम जुमा के दिन टाइम पर पहुंचिए, ताकि आलिम उलमा की जुबान से आप कुछ शरीयत की बात सुन सके, दीन की बात सुन सके, कुरान और हदीस की बातों को आप सुन सके। इस वजह से कि आज तो इंसान ऐसा हो चुका है कि मोबाइल में पड़ा रहता है, अपने बिजनेस में पड़ा रहता है। मोबाइल तो एक ऐसी बड़ी आफत है कौम मुस्लिम के लिए, हालांकि ये भी एक साजिश है क्रिश्चियन और यहूदियों की और गैर कौमों की एक साजिश है। अगर मुसलमान को बर्बाद करना है तो मुसलमानों के हाथों से कलम को छीन लो और मुसलमानों के हाथों पे मोबाइल ला करके थमा दो, ताकि उनकी औलाद और उनके समाज के बच्चे अनपढ़ और जाहिल रहे, ताकि हम बड़े बड़े पोस्टों पर आबाद रहे, जैसा चाहे उनको हम नचाते हुए नचवाए। आज तो यही हो रहा है, कुर्सी पर वो लोग बैठे हुए हैं। आज ये मस्जिद बनारस की मस्जिद, तो आज बाबरी मस्जिद, तो कल कुतुब मीनार है, तो परसों जामे मस्जिद है, तो तरसों ये मस्जिद है, वो ईदगाह है, वो खानकाह है। ये सब कुछ आजकल हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? उनके हाथ में मोबाइल नहीं है, उनके हाथ में कलम मौजूद है, उनके हाथ में पावर मौजूद है, उनके हाथ में हुकूमत मौजूद है। तो हमको जरूरी है कि अपने समाज को हम एजुकेशन अता करें, अपने समाज को हम तालीम अता करें, अपने समाज को जहां अपने बच्चे को हमको कुरान की तालीम देना जरूरी है, वहीं पर अपने बच्चे को इंग्लिश और बांग्ला और हिंदी की तालीम भी देना जरूरी है। दुनिया में हम जी पाएंगे तब जाकर के दीन की खिदमत कर पाएंगे। हम दुनिया में जी ना पाए तो हम दीन की क्या खिदमत कर सकते हैं, अल्लाह की इबादत कैसे कर सकते हैं? इसलिए दीन पर चलने के लिए दीन की तालीम जरूरी है और दुनिया में जीने के लिए दुनिया की तालीम जरूरी है।